This is the question bank for the third chapter on photochemistry. Radiant energy is defined as the energy that is transmitted as light, and it is given by energy of a photon is given by E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency of light. Radiant power क्या होता है? Is the total energy emitted or received as radiation in a certain amount of time. Transmittance, P divided by P0 is called transmittance. P is the radiant power transmitted through a sample, and P0 is the incident radiant power. Absorbance is the negative log of transmittance to the base 10. Absorptivity is the ratio of absorbance to product of path length by concentration. लेकिन यहाँ पे important ये है कि आपका concentration should be in grams per liter. उस हिसाब से ये change हो जाएगा. Remember, absorbance, Beer-Lambert's law, which we'll explain afterwards, is equal to some constant. Let's call this right now. I can call this A or epsilon B C. A so will be equal to A by B C, and epsilon also will be equal to A is equal to A divided by B C. दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे concentration is in grams per liter, तो हम लोग उसको absorptivity बोलते हैं. If concentration is moles per liter, this will be called molar absorptivity, जो कि next page में आ जाएगा. Molar absorptivity क्या है? A divided by path length, but concentration should be in moles per liter. Lambert's law क्या है? Beer-law same है. When a beam of monochromatic light passes through a transparent medium, the rate of decrease in radiant power with thickness, यहाँ पे with concentration आ जाएगा, is directly proportional to the radiant power of the incident light. Grothus-Draper law क्या कहता है? वो ये कहता है कि वही लाइट जो आपके सैंपल एब्सॉर्ब करते हैं, सिर्फ वही लाइट आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं. ऑब्वियसली जो लाइट एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे कराएगा? स्टार्क-आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वन फोटोन एब्सॉर्ब्ड, वन मॉलिक्यूल एक्साइटेड. देयर इज अ 1-to-1 रिलेशन. Quantum yield is defined as the number of molecules reacting divided by number of photons absorbed. And हम लोग पिछले इसमें देख चुके हैं कि Einstein's equivalence से this denominator can also be replaced by number of molecules excited, क्योंकि number of molecules excited और number of photons absorbed same होता है. So quantum yield can be number of molecules reacting in a given time divided by number of molecules excited during the same time, or I can write like this also. This also fine. Einstein क्या होता है? Remember Einstein with one Einstein is defined as 1 mole of photons. What is 1 mole? 6.022 into 10 raised to 23. So 1 Einstein is equal to these many photons is called 1 Einstein. Fluorescence क्या होता है? It is emission of light. यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यू नैनोसेकेंड्स आफ्टर द एब्सॉर्बेंस ऑफ लाइट. यदि लाइट ऊपर गया, एक्साइट एब्सॉर्ब हो गया, एंड विद इन अ फ्यू नैनोसेकेंड इट कम्स बैक एंड एमिट्स लाइट. दिस लाइट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस. आमतौर पे फ्लोरोसेंस की एनर्जी एब्सॉर्ब लाइट से कम होता है, लेकिन कभी कभी वो सेम होते हैं. उसको हम लोग रेजोनेंस फ्लोरोसेंस बोलते हैं. फोस्फोरेसेंस फ्लोरोसेंस जैसे ही है, यहाँ पे टाइम का फ़र्क है. फ्लोरोसेंस बहुत जल्दी हो जाता है, फोस्फोरेसेंस थोड़ी देर में होता है. तो इज एमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस few milliseconds to few seconds after the absorption of light, and this delayed emission is normally, ये कारण क्या है ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे. It is because of de-excitation from a triplet to a singlet state. हम लोग ये लास्ट में इसी क्वेश्चन बैंक में we'll talk about Jablonski diagram. Over there we'll
see this, what is phosphorescence, but this answer you can write for phosphorescence. Chemiluminescence क्या होता है? Chemiluminescence is the process of emission of light because of chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट इमिट होता है. तो देखो फ़र्क यहाँ पे क्या है. इसे 1 मार्क क्वेश्चन, योर आंसर कैन एंड हियर. लेकिन 3 मार्क्स है या 2 मार्क्स है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा. केमिल्यूमिनेसेंस में आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में क्यों होता है? केमिल्यूमिनेसेंस में बिकॉज आपका रिएक्शन होता है, उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल एक्साइट होता है. फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस में आपका मॉलिक्यूल एक्साइट इसलिए होता है क्योंकि वो लाइट एब्सॉर्ब करता है. फोटोलिसिस क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका केमिकल कंपाउंड जो है उसके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं लाइट की वजह से. फोटोसिंथेसिस क्या है? इज ए प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू carbohydrate by light in the presence of chlorophyll. It converts light energy into chemical energy. फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन में फ़र्क क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इसमें हीट करता है क्योंकि इसलिए उसका नाम थर्मल है. होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस. होमोलिटिक फिशन यानी कि मतलब है अगर जब एक बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उधर जाता है, उसको होमोलिटिक बोलते हैं. हेटेरोलिटिक में क्या होता है? एक बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एक हो जाते हैं, दूसरे को कुछ नहीं मिलता है. थर्मल में आमतौर पे हेटेरोलिटिक फिशन होता है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में आमतौर पे होमोलिटिक होता है. इसमें आमतौर पे फ्री रेडिकल्स बनता है, इसमें कैटायंस और एनायंस बनते हैं थर्मल में. डिराइव लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, ये अलग अलग क्वेश्चन है. आई हैव जस्ट पुट देम साइड बाय साइड सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटीज. बियर लॉ, लैम्बर्ट लॉ. देखो फ़र्क यहाँ पे सिर्फ इसका है. यहाँ पे बी है, बी लैम्बर्ट्स लॉ में, बियर्स लॉ में ये सी है, बस उतना ही फ़र्क है. यू कैन सी आ गया, तो बी आ गया, सी एम आ गया. यहाँ का K1 है, यहाँ K2 है. इस सम कांस्टेंट डजंट मैटर. सेपरेटिंग द वेरिएबल्स सेम है. यहाँ पे डी बी है, यहाँ पे डी सी है. इंटीग्रेटिंग विद लिमिट सेम है. लेफ्ट साइड सेम है, P नॉट टू P. राइट साइड में 0 टू बी है, यहाँ पे 0 टू सी है बिकॉज ये वेरिएबल है सी. ये आपका एब्सॉर्बेंस इज इक्वल टू K1 B वेयर K1 इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे देखेंगे एब्सॉर्बेंस K2 C वेयर K2 इज अनदर कांस्टेंट. थर्मोपाइल क्या होता है? इसमें आपके 2 मेटल्स होते हैं, आमतौर पर सिल्वर और बिस्मथ के होते हैं. प्लीज़ रिमेंबर सिल्वर और बिस्मथ के अलावा भी दूसरे मेटल से भी थर्मोपाइल बनते हैं. बट होता क्या है, आपके पास 2 मेटल स्ट्रिप्स हैं, दोनों को आप प्लेटिनम ब्लैक से उसको कलर कर देते हो ताकि लाइट अच्छे से एब्सॉर्ब करे. एंड दे आर सोल्डर्ड टुगेदर. एक मेटल स्ट्रिप पे लाइट पड़ता है जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है. दूसरा जो मेटल स्ट्रिप है वो आइस पे रखा जाता है. इसको कोल्ड जंक्शन बोलते हैं, इसको हॉट जंक्शन बोलते हैं. अ पोटेंशियल डिफरेंस develops because of the temperature difference between the 2 junctions. और कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय द फॉलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट energy absorbed by the metal strip. So by measuring the potential difference, it is possible to determine the amount of light, amount of energy. Photocell, ये भी दूसरा एक डिटेक्टर है. Photocell works on the principle of photoelectric effect. When a light falls on a metal with low work function, electrons are ejected, and these electrons, photoelectrons बोलते हैं जिनको, can be made to pass through a circuit by applying an external voltage. और हम लोग करंट को मेजर करते हैं जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो कि तुम्हारे अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ फोटोसेल. यहाँ से लाइट पड़ता है, ये आपका मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है. रिमेंबर, सो दिस पार्ट, दिस टर्मिनल हैज़ टू बी पॉजिटिव, तभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट ये the plus part is facing towards this side, minus part is facing this side. You cannot write this as something like this, minus plus minus. Minus cannot be facing this side, plus cannot be facing this side. This is wrong, so it has to be like this. And you measure the current by a galvanometer, जहाँ से आपको एनर्जी पता चल जाता है.
केमिकल एक्टिनोमीटर क्या होता है? यूरेनियल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर के बारे में बताएं। केमिकल एक्टिनोमीटर वो सब्सटेंस है जिसमें लाइट एब्सॉर्ब करता है और उससे हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। यूरेनियल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर में क्या करते हैं, आप ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और यूरेनियल सल्फेट लेते हैं। लाइट यूरेनियल सल्फेट एब्सॉर्ब करता है। रिमेंबर ऑक्जेलिक एसिड कैन नॉट एब्सॉर्ब दिस लाइट। लाइट को यूरेनियल सल्फेट एब्सॉर्ब करता है, ये एक्साइट हो जाता है, इसके एनर्जी बढ़ जाते हैं और इसका जो एक्सेस एनर्जी है ये ऑक्जेलिक एसिड को ट्रांसफ़र करता है और ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है। और कितना ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज हुआ है उससे हम लोग को पता कर सकते हैं कि कितना लाइट पड़ा था। So the concentration of oxalic acid before and after the reaction is determined by titrating with potassium nitrate, potassium permanganate, and the difference in the concentration of oxalic acid is directly proportional to the energy of light absorbed. फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है? फोटोसेंसिटाइजेशन मतलब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है लेकिन वो खुद लाइट एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, लाइट एब्सॉर्ब करने के लिए उसको दूसरा लगता है। एक्चुअली यहाँ पे ही हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। देखो रिएक्शन किसका हो रहा है? ऑक्जेलिक एसिड का। लाइट कौन एब्सॉर्ब कर रहा है? यूरेनियल सल्फेट। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन। इसको हम लोग फोटोसेंसिटाइजर बोलते हैं। It is a process when a molecule undergoes a photochemical reaction even though the molecule itself cannot absorb light directly. The molecule called a sensitizer, जो कि यूरेनियल ऑक्जेलेट में यूरेनियल सल्फेट जो है, दैट्स अ sensitizer, it absorbs light, it gets excited और एक्साइटेड मॉलिक्यूल एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल के देता है जो कि रिएक्शन करते हैं। जाबलोन्स्की डायग्राम, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो एक एक करके देखते हैं। सो यू हैव ग्राउंड स्टेट जो कि सिंगलेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि सिंगलेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो कि सिंगलेट है। सो द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड S0, first excited state is called S1, second excited state is called S2. This is the triplet excited state, first it is called T1. आमतौर पे मॉलिक्यूल आपके ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, S0 पे होते हैं। सो लेट्स राइट। जाबलोन्स्की डायग्राम होता क्या है? जाबलोन्स्की डायग्राम shows lines representing different energy levels and it is used to show radiative and non-radiative energy transitions between electronic and vibrational states of a molecule. रेडिएटिव मतलब यानी वो ट्रांजिशन जिसमें लाइट निकलता है, नॉन रेडिएटिव यानी जिसमें लाइट नहीं निकलता है। सो सम ऑफ द प्रोसेसेस विल बी रेडिएटिव, सम ऑफ द प्रोसेस विल बी नॉन रेडिएटिव। तो यहाँ पे देखते हैं। Okay. A molecule in the ground state S0 is excited to higher energy level S1 or S2 by absorption of light, which is this green light. This takes place in femtosecond time. Femtosecond यानी 10⁻⁻15 of a second. ये you don't need to write this. This part is just for your explanation. अगर आपने एग्जाम में आप मल्टी कलर्ड पेन यूज़ किया तो आप लिख सकते हो, नहीं तो यू डोंट राइट दिस पार्ट। एक्साइट हो गया मॉलिक्यूल, अब डी एक्साइट होगा, दिस कॉल एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या करता है? इट नॉन रेडिएटिवली यानी बगैर लाइट दिए डी एक्साइट्स टू लोअर एनर्जी लेवल ऑफ S1 बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन, जो कि यहाँ पे येलो है। दिस आर ऑल इंटरनल कन्वर्जन, इसमें लाइट बाहर नहीं आता है। दिस टेक्स प्लेस इन पिकोसेकंड टाइम स्केल यानी 10⁻⁻12 टाइम में होता है। इसको इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। तीसरा, अब ये जो S1 है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, देखो, सो लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू। मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया या यहाँ गया, यहाँ से गया इधर आया, दिस कॉल्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहाँ से ये जो आया यहाँ से आया, इसको कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन, इट्स नॉन रेडिएटिव। अब यहाँ आने के बाद आप मॉलिक्यूल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो नीचे आएगा या इधर जाएगा। जब नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। The molecule in the lowest vibrational state S1 can de-excite to ground state, यहाँ से यहाँ तक आया by giving light in nanosecond time scale। तो इसको हम लोग फ्लोरोसेंस बोलेंगे, या फ्लोरोसेंस।
लेकिन यहाँ से उधर भी जा सकते हैं ट्रिपलेट 1 में. अनदर पाथवे इज लोएस्ट वाइब्रेशनल S1 de-excites to triplet T1 by a process called इंटर-सिस्टम क्रॉसिंग. इस यहाँ से यहाँ जो होता है इसको हम लोग इंटर-सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं. दिस ब्लू लाइन इंटर-सिस्टम क्रॉसिंग. और यहाँ से फाइनली इट विल कम हियर बैक टू द नॉर्मल द ग्राउंड स्टेट बाय प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, जिसमें टाइम लगता है. द मॉलिक्यूल इन द ट्रिपलेट स्टेट de-excites this within 10 days. तो हम लोग ने पहले पेज में बताया था कि इफ़ यू रिमेंबर फ्लोरोसेंस के लिए हम लोगों को कम टाइम लगता है क्योंकि यहाँ से यहाँ झट से आ जाता है. फॉस्फोरेसेंस में टाइम लगता है क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ जाता है एंड ऊपर से ट्रिपलेट टू सिंगलेट और सिंगलेट टू ट्रिपलेट ये जो डी एक्साइटेशन है दिस इज़ क्वांटम मैकेनिकली फोरबिडन. तो ये अलाउड नहीं होता है, तो अलाउड नहीं होता है, टाइम लगता है, इसलिए फॉस्फोरेसेंस को टाइम लगता है. दिस इज द फॉस्फोरेसेंस. थैंक यू वेरी मच.